बीएससी करतोय एवढं आता जेव्हा माझी क्लास आहे तेव्हा कसं करायचा. Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. कल हम लोगों ने मालवेसी फैमिली शुरुआत की थी. कल हमने जो स्टडी किए थे उसके ऊपर में एक क्विक ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग. मालवेसी फैमिली को मालो फैमिली भी कहा जाता है. ये फैमिली में टोटल 244 जेनेरा और 4225 स्पीसीज ओवरवर्ल्ड रिकॉर्ड की जा चुकी है और इंडिया में 82 जेनेरा और 1500 स्पीसीज अब तक रिपोर्ट की जा चुकी है. ये फैमिली का जो क्लासिफिकेशन है ये सिस्टमेटिक पोजीशन में डिवीजन फेनोरोगेम्स आता है, क्लास डाइकोटिलिडॉन, सब क्लास पॉलीपेटाली, सीरीज थैलेमेफ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स and family Malvaceae. The common plant which are present in our area are listed in this table: Hibiscus andulosus, Hibiscus canthus, Hibiscus rosa sinensis, Hibiscus micronanthus, Hibiscus hirtus, Hibiscus rosa sinensis variety Gandhi, Thyspesia populina, Gossypium herbatum, Abitulum indicum, and Althea rosea. These are the picture of the plants which are commonly available in our area. The first one is Sida acuta.
Second one is hibiscus, that is Hibiscus rosa sinensis, showing various colors and different shapes of corolla. All these forms are available and found in our area. These are the various colors of hibiscus flower. This is a color of blue. Then this is another form of corolla in the same color blue. This is malva plant. This is Abitulum indicum. This is very common in rainy season as a weed in our area. Even at the side of our agricultural farms, this plant is growing abundantly in Nawapur. Gossypium herbatum, this is a cultivated plant. We cultivate this plant in our agricultural field for its cotton. Althisia rosea, commonly this plant is known as hollyhock plant, and hollyhock shows variation in color of corolla. Near about 5 to 6 colors are observed in our area. Thyspesia populana, this is commonly known as kapur bend, and this is again also very common plant in our area. The Malvaceae family, the plants are distributed in cosmopolitan form. Cosmopolitan means they are distributed throughout world in any climatic condition. The habit of plant in Malvaceae family, plant shows herbs, shrubs and trees. All these three categories are present in family Malvaceae. The plants are annuals or perennials, means they complete their life cycle within 1 year or more than 2 years. That is annual and perennial. The taproot system is present in this family, which is very branched, and ultimately the taproot system is a characteristic feature of dicotyledon, and this plant belongs to dicotyledon. Stem, this stem is erect, herbaceous or woody, both types are present in this family. Herbaceous stem is also there, and woody stem is also there. Stem is much branched, cylindrical, solid, and on the stem the stars are observed. Hairs are observed. These hairs are star shaped, and these star shaped hairs are known as stellate hairs. Leaves are simple, alternate. You are observing in this second photograph, the arrangement of leaves are alternate to each other. So this type of arrangement of leaves, that is phyllotaxy. Phyllotaxy is known as alternate. While leaves are stipulate, at the axil of each leaves you are observing such greenish or brownish structured small flap like structure is present at the axil of each leaves, and such condition is known as stipulate. Multicostate reticulate venation is present. Obviously this plant belongs to dicotyledon, so it shows reticulate venation, and in reticulate venation multicostate condition is present. You are observing here a central midrib is present, and from bottom of this midrib it is divided into sub midribs. So when midrib is divided into number of sub midribs, this is known as multicostate condition. Multi means many and costa means midrib. Costa is divided for many times, so this is known as multicostate reticulate venation. Inflorescence, this is solitary axillary terminal cyme. Solitary means single, and axillary means it is arising from the base of leaf, means axil of leaf. So it is axillary. Solitary means single. Each inflorescence axis is terminated into flower. Its growth is checked, and on one inflorescence axis only one flower is present. So this is known as solitary. The dictionary meaning of solitary is one or alone. The only one flower is present on each inflorescence axis or one inflorescence axis, so it is known as solitary inflorescence. Or in very few plants it is compound cyme, but in majority of plant it is solitary, axillary and terminal cyme.
In exam, there will be a question, which type of inflorescence is present in family Malvaceae, or which type of inflorescence is present in hibiscus plant. So your answer must be solitary, axillary, terminal, cyme. This is the right answer. Don't write only solitary. Only solitary is a very short answer. They might be cut your marks. So solitary, axillary, terminal, cyme, this is a proper answer, and you have to write the proper answer in examination. The flowers are usually pedicellate. As here you are observing, the flower is arising on a long stalk, and when flower is arising on a long stalk, it is known as pedicellate flower. It is bracteolate. Here, just below to the calyx, some other structure is present at here, and this is a unique character of this family. Bracteoles are modified into epicalyx, and epicalyx is present only in Malvaceae family. So this is a unique character or identical character of this family. Flowers are actinomorphic. As we know, when flowers are cut down from any plane, it will divide it into two equal parts, and such flowers are known as actinomorphic flower, and actinomorphic flowers are present in family Malvaceae. Flowers are bisexual. Here in this sketch you are observing that male and female, both sexes are present in a one flower only, and when they are present in a single flower or one flower, it is known as bisexual. Bi means two and sexuals means sex organs. Both sex organs are present in a one flower, so this is known as bisexual. It is complete. Complete means when calyx, corolla, androecium and gynoecium, all four holes are present in a one flower. That flower is known as complete flower. Hypogynous. Here you are observing this is gynoecium, and other floral parts are arising from the base of gynoecium, from the below to the gynoecium, that is calyx, corolla and androecium are arising from the base of gynoecium. So this is known as hypogynous flower or superior flower. Flowers are always pentamerous. This is a characteristic feature of dicotyledon. So calyx, corolla, androecium, gynoecium, they are present in the number of 5 or multiple to 5, and when this condition is present, the flower is known as pentamerous flower. Now calyx. Calyx consists 5 sepals. The 5 sepals are united to each other, and when sepals are united to each other, the condition is known as gamosepalous. Sepaloid calyx is present. As yesterday I told you that in some flowers, the corolla having a very dull color, it doesn't having any smell, so insect cannot attract towards these such flowers. So for attraction of insect, other floral parts rather than corolla modified like a corolla, and they functions like a corolla. They attract insects for pollination, and such type of modification where calyx is modified like a corolla and it functions like a corolla, that calyx is known as petaloid calyx. But this condition is not present at here. Calyx is normal, it functions like a normal, and its shape is also normal. So calyx looks like calyx, so it is known as sepaloid calyx. Sepals as like sepals, and calyx is inferior. Estivation in calyx is volvate. 5 sepals are present. These sepals are united to each other, but no any border of sepal is overlapping or overlapped to each other. You are observing in this figure, they are laid side by side. Both borders are lie side by side. So such condition is known as volvate estivation. Now corolla.
Corolla consists 5 petals. As this is a pentamerous flower, calyx is also 5 in number, and now corolla is also 5 in number. Polypetalous. Petals are free from each other, so this condition is known as polypetalous. Estivation is twisted. Here you are observing one border of each petal is outer side and one border is of each petal is at inner side. Every petal is showing the same arrangement. One border is at outer side, one at inner side, and due to this arrangement, the flower looks like a twisted appearance. Flower becomes or shows twisted appearance, and due to this twisted appearance, estivation is also known as twisted estivation. The corolla is colorful. They shows various colors, range of color in this family. Androecium. The stamens are indefinite. As we know, androecium is made by 3 parts: stamens, connective, and filament. Now, stamens are indefinite here. If we count the stamens, it is very difficult to count it. So, we term it as a stamens are indefinite in number. Stamens are arranged on staminal tube. All filaments comes together, unite together to form one single staminal tube. One single staminal tube is formed, so this is known as monoadelphous condition. Monoadelphous condition. Mono means single and adelphi means bunch. All filaments unites together to form a single bunch, single group of filaments. So this is known as monoadelphous condition. Beware, in examination, this might be asked in the form of short note. Write down about monoadelphi or write down about androecium in Malvaceae. So you have to write down about monoadelphous. Small sketch is expected, plus 2 lines about monoadelphous is expected in examination if they ask for it is a short note. You have to write all filaments unite together to form single bunch. So this is known as monoadelphous condition. These 2 lines will give you full marks. So remember, this might be asked for short question or short note. The epipetalous condition is observed in Malvaceae. Here, the hibiscus flower, photograph of hibiscus flower is here. You are observing this is a staminal tube. All filaments unite together to form a single bunch, and this bunch, at the base of this bunch, they are connected or they are united to the corolla. So at the base, androecium is united or adhere on the corolla. This condition is known as epipetalous condition. Now, filament of this androecium are short and anthers are monothecous. Anthers are made by one cell only, so this is known as monothecous condition. Anthers are always extrusive. You are observing this figure here, red color, excuse me, hello. As you are observing, the entire corolla is red in color. Even filaments are red in color, but anthers are yellow in color, and these anthers are coming out from corolla. They are external to the corolla. Such situation is known as
extrose condition, and the pollen grains which are present inside this anther shows spiny wall. This is known as spinose pollen or spinose pollen grains. The pollen grain shows spiny wall, so this is known as spiny pollen. The attachment of stamen and filament is at dorsal side, so this is known as dorsifixed stamens. Up to this we have studied yesterday. Now we are going to study gynoecium. As we know, this is actinomorphic flower. This is complete flower, means the flower shows dividation from any plane into two equal parts is known as actinomorphic flower, and this is complete flower. Complete flower means androecium and gynoecium both are present in a same flower, so it is known as complete flower. Gynoecium is the last whorl of flower, means we know that in flower 4 whorls are present: calyx, corolla, androecium and gynoecium, out of which androecium and gynoecium are known as essential whorls, while calyx and corolla are known as non-essential whorls. In this flower or in Malvaceae flower, the gynoecium is a last or fourth whorl or inner whorl of flower. It consists of indefinite carpels, means the gynoecium consists indefinite number of ovaries. Here below the section of ovary is here, and we can count. यहाँ पर जो ओहरी का सेक्शन दिया हुआ है, ये ओहरी के सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, गिन सकते हैं आप लोग, 5 से ज्यादा चेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और 5 से ज्यादा चेंबर जिस वक्त प्रेजेंट होते हैं वो ओहरी को हम लोग पॉलीकार्पेलरी ओहरी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, 5 से ज्यादा जिस वक्त कोई भी चीज प्रेजेंट होती है तो उसे पॉली कहा जाता है। और कार्पेलरी का मतलब होता है, कार्पेल का मतलब होता है गाइनोशियम, यानी 5 से ज्यादा गाइनोशियम अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे पॉलीकार्पेलरी कंडीशन कहा जाता है। और ये सिन कार्पस है। सिन कार्पस का मतलब होता है ये सभी के सभी चेंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में यूनाइट हुए हैं, इसलिए इसे सिन कार्पस कंडीशन कहा जाता है। और ये फ्लावर अगर आप देखोगे तो ये गाइनोशियम के नीचे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैलिक्स है, ये एंड्रोशियम है और ये करोला, तीनों के तीनों चीजें गाइनोशियम के नीचे से आ रही है, इसलिए इसे सुपेरियर ओवरी कहा जाता है। अब ये गाइनोशियम को हम कैसा एक्सप्लेन करेंगे? पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपेरियर, मल्टीलॉक्यूलर गाइनोशियम या मल्टीलॉक्यूलर ओहरी, इतने 4 वर्ड में हम पूरे गाइनोशियम को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ the flower consists more than 5 ovules or 5 carpels, so it is known as polycarpellary। इतना लंबा वर्ड यूज करने की या सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉलीकार्पेलरी इतना लिखना है आपको। फिर सिनकार्पस भी हम लोगों ने देखे, when ovary are united with each other the condition is known as syncarpus। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर में भी हम लोगों ने देखा, when other floral parts are arising from the base of ovary, that is calyx, corolla and androecium are arising from the base of ovary, condition is known as superior।
और मल्टीलॉक्यूलर का मतलब होता है व्हेन मोर देन 5 चेंबर्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, इट इज नोन एज मल्टीलॉक्यूलर। ये तो फिर बड़ा सा एक पन्ने भर का आंसर हो जाता है, इतना हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ इतना ही कहना है गाइनोशियम के बारे में, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपेरियर, मल्टीलॉक्यूलर। अब ये सेक्शन को हम लोग देखेंगे, हर चेंबर में हमें एक ओव्यूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर चेंबर में एक ओव्यूल दिखाई देता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ईच लॉक्यूल बियर 1 to many ओव्यूल्स। अब ये जो सेक्शन यहाँ पर बताया गया है, इसमें हमें एक चेंबर में एक ही ओव्यूल दिखाई दे रहा है। हिबिस्कस का अगर देखें हम लोगों ने तो एक चेंबर में कभी कभी 2 ओव्यूल्स दिखाई देते हैं। साइडा नाम का एक प्लांट हमने लिखा हुआ था, साइडा एक्यूलेटा। इस साइडा एक्यूलेटा में 2 से ज्यादा ओव्यूल्स एक चेंबर में दिखाई देते हैं, यानी ओव्यूल के नंबर में प्लांट में वेरिएशंस दिखाई देते हैं, प्लांट टू प्लांट वेरिएशंस दिखाई देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ईच लॉक्यूल बियर 1 to many ओव्यूल्स। अब गाइनोशियम को हमें एक सिंगल सेंटेंस में फिर से मैं रिपीट करता हूं, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपेरियर, मल्टीलॉक्यूलर एंड ईच लॉक्यूल बियर 1 to many ओव्यूल्स। इतने एक फुल सेंटेंस में हमारा पूरा गाइनोशियम डिस्क्राइब हो चुका है। ये गाइनोशियम में मैंने जो आप लोगों को बताया, इसमें कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को? नो सर। Hello students, are you getting my voice? यस सर। यस सर। यस सर। Hello, are you hearing me? यस सर। यस सर। Hello, hello, यस सर। anybody is there? Are you hearing me? यस सर। Yes. यस सर। Okay, Yes, sir. okay. Any difficulty बेटा? नो सर। तो गाइनोशियम, अब मैं कभी भी, आप जब भी मुझे मिलोगे या लेक्चर शुरू होने से पहले मैं पूछूंगा आप लोगों को, तो गाइनोशियम आप एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर। ओके, कोई तो भी एक मुझे गाइनोशियम सिर्फ बोल के बताओ। आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, अभी सिर्फ आपको देखकर बोलना है। कल मैं जब पूछूंगा तो स्क्रीन नहीं रहेगा, बिना स्क्रीन के आपको फिर कल बोलना है। आज एक कोई तो भी मुझे बोलकर बताओ, कैसा बोलेंगे गाइनोशियम? It consists of 5 to indefinite carpels, polycarpellary, syncarpous, superior, multilocular. Each lobule bear 1 to many ovules. ओके, बिल्कुल बराबर बोले। सिर्फ ऊपर का जो सेंटेंस है ना, वो पूरा नहीं बोलने का, उसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ इतना ही कहना है, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपेरियर, मल्टीलॉक्यूलर, ईच लॉक्यूल बियर 1 to many ओव्यूल्स। क्योंकि देखो एग्जाम में जितना लंबा खींच के लिखते जाओगे उतना समय अपना बर्बाद होते जाता है। कम समय में हमें अच्छे क्वालिटी का पेपर लिखना है, तो अच्छे क्वालिटी का पेपर अगर लिखना है तो ये सब चीजें जितना शॉर्ट में। अब कई बार ऐसा होता है, हम हमारे फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड के ग्रुप में एक फ्रेंड ऐसा होता है कि जो बात को बहुत लंबा खींचकर बोलने का आदी होता है, और कोई फ्रेंड ऐसा होता है कि बहुत छोटे लफ्ज में बहुत बड़ी बात कह जाता है। दोनों फ्रेंड ही है, मगर दोनों के पर्सनैलिटी में फर्क होता है। एक बात को अननेसेसरी इतना खींचता है कि पूरा फ्रेंड का ग्रुप सोने लग जाता है, और एक फ्रेंड इतनी बड़ी बात छोटे लफ्जों में कहता है कि जो सबके दिल को छू जाती है। हमें
कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना है ये पेपर में। तो पॉलीकार्पेलरी का मतलब उसे लंबे से डिस्क्राइब करते मत बैठो, ये तो आपके समझने के लिए मैंने ऊपर की 2 लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ 5 इंडिफिनाइट कार्पेल्स, ये नहीं बोलना है हमें। जस्ट से और जस्ट राइट पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चा क्लियर कट है, उसे बराबर समझ में आया है और बिना वजह की बात नहीं कह रहा है। ये चीजें हम लोग जिस वक्त टेक्सोनॉमी का एक्सप्लेनेशन करते हैं ना, तो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अननेसेसरी राइटिंग करने वाले स्टूडेंट होते हैं। और हमारे एरिया में तो एक बात बहुत प्रचलित है कि जितना बड़ा आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा मार्क मिलेंगे, जितनी सप्लीमेंट ज्यादा लगाएंगे उतना स्टूडेंट ज्यादा होशियार है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और फिर एग्जाम होने के बाद में बाहर आकर डिस्कशन करते हैं, मैंने 4 सप्लीमेंट लगाया, मैंने 10 सप्लीमेंट लगाया, और रिजल्ट जब आता है ना, सब लोगों को पता है क्या होता है। तो जितना साइंटिफिकली बोलना है उतना ही बोलेंगे। अब जब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ाऊंगा ना आपको ये सब प्लांट्स के, उस वक्त आप लोग देखना कि शॉर्ट में बात करना किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइनोशियम के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये गाइनोशियम में जो प्लासेंटेशन होता है, ये प्लासेंटेशन को एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है। एक्साइल प्लासेंटेशन का मतलब होता है ये जो ओवरी में टोटल यहाँ पर 5 चेम्बर्स बताए गए हैं, और ये 5 चेम्बर्स की जो वॉल है, साइड वॉल, ये साइड वॉल सेंटर में आकर सब आपस में मिलती है। सभी ओव्यूल्स की साइड वॉल सेंटर में आकर मिलती है, और ये सेंटर में आकर मिलने के वजह से ये पूरे स्ट्रक्चर को एक चक्के के जैसा, यानी एक्साइल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसे एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है। और प्लासेंटेशन, ये जो सेंटर का प्लासेंटा होता है, इसके ऊपर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे एक्साइल प्लासेंटेशन कहा जाता है, जो आगे चल के हमें फ्लोरल डायग्राम में निकालनी है। इसका जो स्टाइल होता है, अब हम लोगों को पता है कि गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल और ओहोरी, ये 3 चीजों से बना हुआ होता है। यहाँ पर ऊपर की ओर ये जो वेलवेटी स्टाइल दिख रहा है या वेलवेटी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। और ये स्टिग्मा जो होता है ये 5 नंबर में दिखाई दे रहा है। हमें पता है डाइकॉट का फ्लावर है, पेंटामेरस फ्लावर है, तो हर चीज 5 में ही होनी है या 5 के मल्टीपल में होनी है। यहाँ पर 5 स्टिग्मा हमें दिखाई दे रहा है, और ये स्टिग्मा के नीचे फिर यहाँ पर स्टाइल होता है। स्टाइल, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है ना, ये एंड्रोशियम है। सभी फिलामेंट्स आपस में यूनाइट होकर एक स्टेमिनल ट्यूब फॉर्म की है, और ये स्टेमिनल ट्यूब के अंदर ये स्टिग्मा और स्टाइल होता है। ये स्टिग्मा तो बाहर आ गया, इसके अंदर फिर स्टाइल होती है जो ओवरी तक जाती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वो स्टेमिनल ट्यूब को अगर बाहर निकालते हैं हम लोग फोर्सेप्स से या कालपेल से या किसी नीडल से, तो उसके अंदर से ऐसा स्टिग्मा और स्टाइल हमें दिखाई देता है। ये ऊपर टोटल 5 स्टिग्मा होते हैं और उसके नीचे ये स्टाइल होती है। ये स्टाइल बहुत लंबी होती है, जो ये पूरे के पूरे गाइनोशियम को बाहर निकालती है फ्लावर के, जिसे हमने एक्सट्रोज कंडीशन कहा था। इसका जो फ्रूट होता है ये लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट होता है और साइजोकार्पिक। पूरे मालवेसी फैमिली में 2 टाइप के फ्रूट मिलते हैं, एक लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट और दूसरा साइजोकार्पिक फ्रूट। लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये कॉटन का बॉल है। ये कॉटन बॉल में अंदर के साइड में सीड्स होती है, सीड्स के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और बाहर का जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे वॉल कहा जाता है, ये वॉल कैलिक्स बाद में हार्ड होता है, और ये कैलिक्स वो कॉटन बॉल का कवरिंग बनता है, और ये कवरिंग फिर फूटता है। इसे आप लोग देख रहे हैं फ्रूट में, फ्रूट जैसे फूटता है मैच्योर होने के बाद में, इसे एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया जाता है, डिहाइसेंस, यानी
फ्रूट में ब्रेकअप होना, फ्रूट में फूटना। जब फ्रूट फूटता है और उसमें से सीड्स बाहर निकलती है, तो हर फ्रूट अलग अलग तरीके से फूटता है। यहाँ पर जितने कैलिक्स होंगे उतने कैलिक्स के हिसाब से ये फ्रूट के कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और उसमें से सीड्स फिर बाहर निकलती है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो करीब करीब 5 से 6 कैलिक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये फूटते हैं। इनके फूटने का जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म के फ्रूट को कहा जाता है लॉक्यूलिसाइडल फ्रूट या लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल फ्रूट। और इस तरीके से ये 2 टाइप के फ्रूट ये फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो सीड्स होती है, आप सभी ने कॉटन के सीड्स देखे होंगे ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर हेयर्स वाली सीड्स और बिना हेयर वाली सीड ऐसे दोनों बताई गई है। यहाँ पर सीड के ऊपर एक थिक ऐसा हेयरी कवरिंग होता है और बिना कवरिंग के, बिना हेयर के सीड्स इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ तक हम लोगों ने मालवेसी फैमिली के पूरे प्लांट का, उसमें मिलने वाले सभी प्लांट का एक कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया। हम लोगों ने शुरुआत की थी हैबिट से लेकर सीड तक के ये फ्लावर्स में, ये फैमिली में कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने इसका स्टेम पढ़ा, इसका लीव्स पढ़ा, उसके बाद में इसका फ्लावर, फिर उस फ्लावर में के सभी चारों पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े, इसका फ्रूट देखा और इसका सीड भी देखा। अब हम लोग ये फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ये फ्लोरल फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो हमने BR का सिंबल लगाया। फिर हमने देखा था कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का ये सिंबल हमने यहाँ पर लगाया। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल का सिंबल हमने लगाया। यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, मगर ब्रैक्टियोल्स इपिकैलिक्स में मॉडिफाई होते हैं, तो इपिकैलिक्स के लिए सिर्फ यही फैमिली में लिखा जाता है, बाकी कोई फैमिली में नहीं लिखे जाएगा ये, क्योंकि इपिकैलिक्स सिर्फ यही फैमिली में प्रेजेंट होता है। इपिकैलिक्स का नंबर 3 से 7 होता है, तो इपिकैलिक्स के लिए EPI 3 to 7 ऐसा हम लोगों ने लिखे। इसमें टोटल 5 कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमने कैलिक्स के लिए K लिखा। 5 कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए 5 नंबर लिखा। और ये कैलिक्स आपस में यूनाइटेड होते हैं। यूनाइटेड का मतलब गैमोसेपेलस कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो हमने ये कैलिक्स को इर्द गिर्द ब्रैकेट बनाया, उसे क्लोज बताया हमने। फिर करोला आता है। करोला में टोटल 5 पेटल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 5 पेटल्स फ्री है, इसके लिए इसके इर्द गिर्द हमने ब्रैकेट नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर पॉलीसेपेलस कंडीशन प्रेजेंट है, पॉलीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है, तो ब्रैकेट नहीं बनेगा यहाँ। फिर एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम हम लोगों ने देखा इनडेफिनाइट नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर इनडेफिनाइट नंबर का सिंबल हमने बनाया। और एंड्रोशियम आपस में यूनाइट होते हैं। हमने देखा मोनो एडेल्फस कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो मोनो एडेल्फस कंडीशन प्रेजेंट होने के वजह से यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, क्योंकि ये आपस में यूनाइटेड है। और एंड्रोशियम जो है वो कैलिक्स करोला से यूनाइट होता है, हमने लिखा था इपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट है। इपीपेटलस मींस एंड्रोशियम पेटल के ऊपर, करोला के ऊपर यूनाइटेड है, इसके लिए इसके ऊपर हमने एक आर्च बनाया, और ये आर्च बताता है कि एंड्रोशियम करोला से यूनाइट हुआ है। अब गाइनोशियम है। गाइनोशियम में हम लोगों ने लिखा पेंटा कार्पेलरी टू पॉलीकार्पेलरी, यानी 5 से इंडेफिनाइट नंबर की ओहरी प्रेजेंट होती है, तो हमने लिखा यहाँ पर 5 से इंडेफिनाइट नंबर लिखा। ये सिनकार्पस कंडीशन है, इस यूनाइटेड है, इसलिए इसको ब्रैकेट यहाँ पर बनाया। यहाँ पर नीचे एक लाइन लगानी रह गई है,
यहाँ पर ओहरी सुपीरियर होने के वजह से यहाँ पर नीचे एक लाइन खींचने चाहिए थी, ये लाइन खींचना रह गई है, यहाँ पर ओहरी सुपीरियर होती है। ये मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है। आपके सामने अगर समझो ऐसे 2-3 फ्लोरल फॉर्मूला रखे गए और एग्जाम में या प्रैक्टिकल के एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा कि ये 4-5 फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें से आपको मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ढूंढ कर निकालना है। सिंपल सी चीज है, ईपी कैलिक्स जहां पर है वो फैमिली मालवेसी है, क्योंकि हमें पता है ईपी कैलिक्स बाकी कोई फैमिली में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ मालवेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो ईपी कैलिक्स जहां पर लिखा है वो फैमिली मालवेसी है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम हम लोग देखते हैं। मैंने आप लोगों को फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक होम असाइनमेंट दिया हुआ था। वो होम असाइनमेंट में कुछ बच्चों ने मेरे पास में आंसर शीट भेजे हुए हैं, मगर सभी आंसर शीट का मैं 1-2-3 दिन में उसमें क्या बराबर है और क्या मिस्टेक हुई है ये आप लोगों को बताऊंगा। मगर सभी आंसर शीट्स में एक कॉमन मिस्टेक है। मैंने आप लोगों को फ्लोरल डायग्राम पढ़ाते वक्त बताया था कि फ्लावर स्टेम के ऊपर अराइज होता है और उसे मदर एक्सिस कहा जाता है, और ये मदर एक्सिस ऐसे एक राउंड सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। आप एग्जाम में हो या प्रैक्टिकल एग्जाम में हो या जिंदगी में कहीं भी आप फ्लोरल डायग्राम निकाल रहे हो और आपने सभी के सभी फ्लोरल डायग्राम बिल्कुल 100% बराबर निकाली, कोई भी गलती नहीं है उसमें, और अगर आप ये मदर एक्सिस निकालना भूल गए तो आपके फ्लोरल डायग्राम को 0 मार्क मिलते हैं। आप चैलेंज ही नहीं कर सकते कि मैं सब बराबर निकाला था मगर मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। ये फ्लोरल एक्सिस या मदर एक्सिस अगर आप नहीं निकालते हैं तो आपके पूरे के पूरे फ्लोरल डायग्राम को 0 मार्क मिलता है। ये हमेशा ख्याल रखना, अदरवाइज एग्जाम में ये पूरा स्ट्रक्चर निकालने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट का समय हम वहां पर वेस्ट करते हैं और मदर एक्सिस अगर नहीं निकाला तो पूरा क्या पूरा फ्लोरल डायग्राम को 0 मार्क मिलते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। अब तक के हम लोगों ने जो स्टडी किया उसे एक बार थोड़ा सा याद कर लेना, कल उसको डिस्कस करेंगे और फिर फ्लोरल डायग्राम से आगे का स्टडी हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। थैंक यू।